Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I welcome you all in my YouTube channel, Exploring the Concepts. So once again, we are at chapter number 13, Immunity, and I am with first year biology. So जी start करते हैं. So immunity got detailed introduction I already have given to you in one of my video. So immunity is basically free from burden. This is actually its the literal meaning, right? Free from burden means this immunity is basically responsible to keep all of the microorganisms and all the invaders away from us. So it is basically the ability to resist the damage from foreign substances. And what a foreign substance? Foreign substance is actually any microorganism, smoke, dust. So all these things are basically the foreign substances, and that is capable, by the way, in in initiating or activating or exciting your immune system. So if they are capable, अगर उनकी presence की वजह से आपका immune system active हो गया, like आपको coughing हो गई या vomit हो गई या पेट में दर्द हो गया, so what does it mean? It means that your immune system is working, right? It is at work. So let's just start with the three lines of defense. We already have discussed this thing. So today I am going to discuss first line of defense. So first line of defense is, by the way, human body is basically first line of defense is including most of the the exposed part of the body, and the exposed part are basically the largest organ of the body, which is the skin. ठीक है ना. सबको मालूम है कि जो स्किन है वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है, एंड स्किन इज बेसिकली कंसिडर्ड एज द the first foremost barrier, and it is the biggest barrier, physical barrier and innate barrier. ठीक है, पैदा होते ही हमारे साथ कोई जो हेल्प कर रहा है हमारी, वो बेसिकली हमारी स्किन है. एंड द अदर थिंग इज स्किन तो आपकी तो आपने देख लिया आउटर मोस्ट नजर आ रही है, लेकिन एक और स्किन का एक और पार्ट है इनर मोस्ट स्किन. आपने कभी नोटिस सोचा है कभी कि आपके अंदर चीक्स, सारा ट्रेकिया, खाने की नाली, सांस की नाली, इसोफेगस, सारे अंदर से भी तो लाइंड है ना सेल से. तो जो उनकी इनर मोस्ट लाइनिंग है, स्टमक, इंटेस्टाइन, the innermost lining of all of this stomach and trachea and respiratory system are basically another, the membrane, which is the innermost membrane, and it is basically mucous membrane is there present, are protecting us. अब देखेंगे हम कि वो हमें कैसे प्रोटेक्ट करती हैं. म्यूकस वाला पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. अभी हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं ऑन स्किन. So basically these surfaces are external barriers to microbial invasions. ठीक है, ये external barriers के तौर पे एक्ट करेंगे. आपकी कोई भी germs आपकी कोशिश कर रहे हैं स्किन से एंटर होने की, तो जब तक कि स्किन रप्चर नहीं होगी कोई एंटर नहीं हो सकता. Same is the case with the microorganism who is trying to get inside your body from your trachea, from your esophagus, stomach, intestine. So it is unable, the organism would fail to enter in your body because of the presence of the mucous membrane in on the inner side of the all of the internal organs. So let's just discuss the skin, which is the first line of defense, and immune working with integumentary. So basically integument is also called as integument, or आप ही समझ लें कि ये आपका सबसे पहला बैरियर है जिस तरह आपको रोकता है, पूछता है क्यों जा रहे हो अंदर. So it is basically the skin. So first line of defense is not only considering the skin, इसके अलावा क्या क्या होता है. Saliva. Saliva में enzymes हैं. You all know that saliva contains the enzymes. And then are the tears. Tears में आपका जो हमेशा आप एक blink करते हो तो आपके आई का एक tear वो replace हो जाता है with, और जैसे जब आप रोते हो, so उससे क्या होता है कि आपकी आईज साफ हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं. क्यों? इधर उधर कोई आँख में जर्म्स एक्सपोज्ड पार्ट है ना, तो उसके अंदर जो जर्म्स वगैरह हैं वो एयर में जो, सॉरी, टीयर्स में जो, आपने कभी पिया होगा, कभी टेस्ट कर लिया होगा, टीयर सॉल्टी होता है ना. सो इट डज नॉट अलाउ microorganisms to grow inside our eyes. So tear glands are basically antibacterial, that contains the enzymes in them. And the mucus lining traps the dirt and microbes. Nose में आपने देखा बाल हैं, और liquid एक है, thick सा liquid है. That thick liquid is called as mucus, which is responsible to trap all of the microorganism and the dust. हम वजू करते रहते हैं, 5 दफ़ा नाक में पानी डाल रहे होते हैं तो हमारी तो क्लीन्स रहती है, लेकिन बाकी जो लोग नहीं नमाज पढ़ रहे, आई मीन जो नॉन मुस्लिम्स हैं, उन्हें क्लीनिंग के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म लेना पड़ता है. फिर इसके बाद स्टमक एसिड है. स्टमक में आप सोचिए ह्यूमन बीइंग हाउ सेंसिटिव द बॉडी इज, मगर स्टमक में एसिड रिलीज होता है और pH 2 है जी, हाईएस्ट.
means the concentrated acid is present in our stomach, and the reason behind to kill all of the microorganism. This is another, benefit, blessing of Allah to us. And then good gut bacteria, and there are so many bacteria present in our in small intestine, in our throat, in the vagina, so in सारे openings पे, इन सारी regions पर microorganisms are there to protect us. ये क्या करते हैं कि आने वाले microorganisms को स्टेबल होने, स्टैब्लिश होने नहीं देते। तो एक ये हमें बड़ा फ़ायदा होता है। और दूसरा क्या, ये क्या करते हैं कि ये स्पेस ले रहे हैं, और जगह जगह भी मिल गई इनको, शेल्टर मिल गया, फूड मिल गया, एंड इन रिटर्न दे आर प्रोवाइडिंग अस प्रोटेक्शन फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म along with the important vitamins and mineral and important things, chemicals जो हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक हो गया, तो ये तो थोड़ा सा हमने देख लिया कि क्या होता है। नाउ लेट्स डिस्कस द फर्स्ट फिजिकल बैरियर विच इज़ द स्किन। तो ये जी जनाब स्किन है, ठीक है। आउटर मोस्ट इज एपिडर्मिस, पहले तो ये याद कर लो, ठीक है। द स्किन हैज थ्री मेन लेयर्स। एपिडर्मिस, ये द होल रीजन, यहाँ तक फैट से ऊपर ऊपर, इज डर्मिस, ठीक है। जो एपिडर्मिस है, ये हमारा वो पार्ट है जिसमें नॉन लिविंग पार्ट भी है। आप अक्सर मूवीज कह रही हूँ, प्रोग्राम्स में आप देखते हो, कभी कोई मेकअप वगैरह का प्रोग्राम है तो वो कहती हैं एक्सफोलिएट करें इसको, स्किन को स्क्रब करें। स्क्रब करने से क्या होगा, डेड स्किन उतर जाती है। डेड स्किन उतरती है तो डेड स्किन क्या होती है, वो डेड एपिडर्मिस होती है। तो एपिडर्मिस में मल्टीपल स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम पढ़ा था आपने नाइन्थ में। तो ये क्या होती है, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है, ठीक है हमारी। सो यहाँ ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस की बहुत सारी मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स हैं। सो दिस द ओनली पर्पज इज टू प्रोटेक्ट अस। ड्राई रहती है थोड़ी बहुत स्किन हमारी, और रफ होती है, और ये डेड सेल्स होते हैं। और फिर इसके नीचे ये डर्मिस है। डर्मिस के अंदर ब्लड वेसल्स हैं, आपके हेयर फॉलिकल्स हैं, और रिसेप्टर्स हैं बहुत सारे। स्वेट ग्लैंड का ग्लैंड्स हैं। और इसका जो हाइपोडर्मिस है, इज मेड अप ऑफ मोस्ट ऑफ द फैट टिश्यूज प्रेजेंट बीनीथ द डर्मिस। सो वो हाइपोडर्मिस में, तो हमने देख लिया एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। कैसे काम करेगा थोड़ी देर में देखते हैं। एक और फिगर देख रहे हो आप, जस्ट टू टेल यू दैट दिस इज द रीजन विच इज द डर्मिस, दिस इज epidermis, dermis, and hypodermis. So rest of the layers of the skin are basically the part of the hypodermis. So the epidermis is basically the outermost. It is non-living. It has cells which are non-living. It is they are the cells which are filled with the keratin protein, right? Keratin is basically responsible for protecting inside the body. ये सारे cells भरे हुए होते हैं केराटिन से, इसलिए इनको केराटिनोसाइट्स भी कहा जाता है। डर्मिस में हेयर फॉलिकल है, स्वेट ग्लैंड्स हैं, नर्व्स हैं, और ब्लड वेसल्स हैं। ये सब आपको मैंने दिखाया अभी फिगर में। और हाइपोडर्मिस लाइज beneath the dermis and contains blood and lymph and fats as well. So next is the three main layers of skin. आप फिर से देख लो, ये epidermis is the topmost, then dermis, and then subcutaneous layer जो नीचे से आपकी living skin है। प्रॉपर लिविंग तो हाइडर्मिस भी है, जिसको ब्लड और फ्लो वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है, इस वजह से वो भी आपकी लिविंग लेयर है। नाउ डिस्कस करते हैं अब एक एक स्टेप, एक एक लेयर को। दिस इज द एपिडर्मिस, द होल इज एपिडर्मिस, ठीक है। अब इसमें ये वो वाला रीजन है, ये जो डार्कर रीजन आपको नजर आ रहा है, ये डेड सेल्स हैं, ठीक है ना। स्किन की ये सरफेस है, यहाँ पर जर्म्स आ रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, अंदर नहीं जा पा रहे। सो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ इज एपिडर्मिस, और इसके अंदर केराटिन प्रेजेंट है, मैंने बताया था पहले। केराटिन क्या करता है, इसको मैकेनिकली टफ बना देता है, ठीक है। और डिग्रेडेशन इसके आसानी से होने नहीं देता, कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टॉक्सिन वगैरह से इसको ब्रेक डाउन नहीं होगी, आउटर लेयर ऑफ द स्किन होगी ये, ठीक है ना। सो बैक्टीरियल एंजाइम से आसानी से डिग्रेड ये नहीं होती। हाँ, डेड सेल्स इवेंचुअली रब ऑफ, ये होता रहता है कि डेड सेल्स, आपने कभी देखा होगा, मैं भी दिखाती भी हूँ आपको, नीचे से न्यू लेयर ऑफ सेल्स आती रहती हैं, ठीक है ना। हमारी स्किन की आउटर मोस्ट लेयर जनरेट होती रहती है, ये रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स में आते हैं, ठीक है। सो डिवाइडिंग स्किन सेल्स प्रोड्यूस न्यू सेल्स। ये जो रीजन होता है ये डर्मिस है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है फैटी एसिड्स। ये मेरे को फिगर, healthy skin
डैमेज स्किन, ये दो तरह की स्किन हैं। ये देख रहे हो कि आपके जर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक कर रहे हैं। अगर तो आपका बैरियर परफेक्ट है, स्मूथ है, इसमें कोई इशू नहीं आया, जितना मॉइस्चर चाहिए था मॉइस्चर उतना है उसके अंदर, जितना उसको ड्राई रहना चाहिए उतना ड्राई भी है, मतलब लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हर वक्त पसीना आया रहेगा तो भी तो स्किन डैमेज होने का चांस है ना। तो उसमें जर्म्स ज़्यादा आपकी बॉडी पर अटैक करेंगे। लेकिन नॉर्मल एक ड्राई में क्या होता है कि हमारी स्किन पे फैटी एसिड्स हैं, देखो फैटी एसिड्स होते हैं स्किन सर्फेस पे प्रोड्यूस होते रहते हैं, ठीक है। अब वो उसको ड्राई बनाते हैं, सॉल्टी बनाते हैं और एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखते हैं, जिसकी वजह से बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर ग्रो नहीं कर सकते। और हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपको कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगा के रखना चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी तो आपको तकलीफ़ हो जाएगी। इतनी ज़्यादा ड्राई भी नहीं करनी कि आप डैमेज ही हो जाए स्किन, वहाँ से ज़ख़म बन जाए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी को और जो स्किन है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपको प्रोटेक्ट ना कर सके। ये देख रहे हो ना, जब बैरियर टूट जाएगा तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हर चीज़ अंदर जा रही है, क्या कि बॉडी का मॉइस्चर वेस्ट हो रहा है ना। सो and that inhibits the growth of some microbes and is highly resistant to breakdown by bacterial enzymes, और bacterial enzymes भी इन fatty acids को break down नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो मॉइस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, जितना रिक्वायर्ड पानी उसको चाहिए वो उसको मिलते रहना चाहिए। इफ़ यू वांट टू हैव अ हेल्दी स्किन यू नीड टू टेक 8 ग्लासेस पर डे। आपने कई जगह पे पढ़ा होगा, आई एम सॉरी मैं तो 8 ग्लास पूरे नहीं कर पाती हूँ, टाइम नहीं मिलता शायद, लेकिन कभी 5 to 6 तो मेरे हो जाते हैं। सो देन डेड सेल्स जो हैं वो आपको पता टाइटली कनेक्टेड रहेंगे जब तक कि वो खुद से, जब तक कि फुली डेड ना हो जाए तब तक कि वो नहीं गिरेंगे। अब वो कैसे गिरेंगे हम देखते हैं। एक और फिगर है हमारे पास, ये आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि आपकी स्किन कभी कभी ऐसी इतनी ड्राई हो जाती है कि स्किन ऊपर वाली टूट के निकल रही होती है। ये हम अपनी स्किन, आउटर मोस्ट स्किन को रब करते हैं, ठीक है ना, रब ऑफ कर रहे थे, शेड करते हैं। तो ये डेड सेल्स हमारी स्किन के शेड होते रहते हैं। तो आप जब पॉलर्स जाते हो, फेशियल्स करवाते हो, सो दिस इज़ ऑल व्हाट दे डू, दे आर ट्राइंग टू रिमूव द डेड लेयर ऑफ सेल्स। वो उनको फुली एक ही गो में निकाल देती हैं। ह्यूमन बींग्स की बॉडी में जो आउटरमोस्ट डेड लेयर है वो एक साथ पूरी बॉडी की नहीं उतरती, लेकिन स्नेक्स की आपने सुना होगा, उनकी पूरी बॉडी की जो डेड लेयर है वो पूरी एक साथ उतर जाती है। पहले तो कनेक्टेड रहते हैं, फिर डेड सेल्स फ्रीक्वेंटली आहिस्ता आहिस्ता उतरती जाती है और न्यू सेल्स की जगह पे रिप्लेस होता जाता है, वो मैंने पहले फिगर में दिखाया था आपको। ओके, देन दिस इज व्हाट इज सेल्यूलर टर्नओवर। आई वांटेड टू टेल यू कि आपको छोटे बच्चों की स्किन 14 डेज के अंदर रिकवर हो जाती है, न्यू सेल्स बन जाते हैं। इस फिगर को ज़रा ध्यान से देखो, शेडिंग ऑफ डेड स्किन सेल्स। आउटर मोस्ट में जो शेड हो रहे हैं ना, ये वाले जो स्किन से बाहर निकल रहे थे आर डेड सेल्स, ठीक है। ये मेच्योर सेल्स हैं, ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। स्टेम स्किन इट इज़ मेड अप ऑफ दीज लेयर्स, राइट। मेच्योरिंग सेल्स एंड न्यू सेल्स, यहाँ पे सेल्स बन रहे हैं डर्मिस के रीजन में। यहाँ पे ये बेसल लेयर है इनकी, ठीक है। यहाँ पे रैपिडली डिवीजन हो रही है, रैपिड डिवीजन से इसमें आए, इसमें मेच्योर हुए, मेच्योर होकर ये मेच्योर सेल्स इस स्टेज में आ गए, और जब वो डेड होने लगते हैं तो वो इस तरह से आपकी बॉडी से निकल जाते हैं। सो किड्स की बॉडीज़ में 14 डेज में टर्न ओवर है न्यू सेल्स बनने का, जिनकी उनकी बॉडी में जल्दी जल्दी बनती हैं। टीन्स में भी 14 से 28 है, लेकिन 20s में 24 to 30 है, यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका न्यू स्किन का आने का टर्न ओवर स्लो होता जा रहा है पैसेज। 40s में 30 to 42 डेज हो गया है, और 50s में 45 to 84 डेज लगेंगे टू हैव अ न्यू लेयर ऑफ न्यू सेल्स ऑफ स्किन, राइट। This is all about the skin as a barrier, and we have seen that it has three main layers. One of them is the epidermis, then dermis, and then hypodermis. So epidermis is the most important layer for protecting us from all of the microorganisms. So we will discuss the next part in the next video. So we will meet again in the next video. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. Allah Hafiz.